Students, today we are going to continue the same chapter, that is why do we fall in, and myself Dr. Umesh Kumar Yadav, PGT Biology, presently at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Birauli Samastipur, situated in Bihar. So let us start. Why do we fall in? In last video, we have talked regarding the personal and community issues, both matters for being healthy. Both individual, that means we have to take care of our health and hygiene individually, as well as it is the responsibility of the community, it is the responsibility of the society, it is the responsibility of the government agency that they should provide basic facilities which are required to keep the citizens healthy, because for a particular purpose where we are residing, first of all it is air. First of all, air, fresh air is needed. Oxygen we are utilizing while we are breathing inside, inhaling air. So the atmosphere must be free from pollutants. The air must be pure, the fresh air should be available. Suppose where we are residing, in the vicinity, in nearby, if any industry is going to be established and which produces harmful gases, which produces toxic substances, then what will happen? That toxic substances, that gases will diffuse into the surrounding, and the persons in the locality are bound to inhale that toxic substance. Next comes to the facility of water. So there must be facility for availability of potable water, fresh drinking water. Nowadays there is provision for हर घर नल का जल, बड़ी अच्छी सुविधा है, लोगों को पानी मिल जा रहा है और ये पानी काफ़ी अच्छा है, लेकिन लैकुना है कि इसकी जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर है उस पर बहुत अधिक शायद अभी तक इम्फेसिस नहीं दिया गया है कि इसमें यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो एज ए होल, एज ए कम्युनिटी कुछ बातें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी डिसाइड करेगी। अदरवाइज क्या होंगे कि हम जहाँ रह रहे हैं, जो वाटर सप्लाई है, जो वाटर अवेलेबल है, वी आर बाउंड टू ड्रिंक दैट वाटर। सो देयर मस्ट बी सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट मस्ट बी प्योर, दैट मींस दैट मस्ट बी कंटामिनेशन फ्री। वो क्या हो? Contamination free water. Again, there is disposal of garbage. So there must be appropriate provision for disposal of garbage. Otherwise, what will happen? The garbage which we are dumping, that start decomposing, and that is the place for breeding of the mosquito, breeding of the flies, and that lead to spreading of the disease. Especially the garbage, the discharge from hospitals, they are having various types of pathogens. So that type of garbage must be disposed of appropriately, so that the chances of infection will be minimized. So there must be provision for the disposal of garbage. Solid waste management. There must be solid waste management, means garbage disposal. There must be appropriate provision for the disposal of garbage. At the same time, the water which we are discharging after bath, after toilet, after using water in our kitchens, that means the sewage. So there must be appropriate provision for the discharge of sewage. That means there must be appropriate drainage system.
appropriate drainage system must be there. 2 years back there was heavy rain in our state, especially in Patna. What happened? Due to the heavy rain and due to the choke of the drainage system, and this choking of drainage system is basically due to the presence of polythene. The polythene, the plastic, the garbage which we are dumping, and especially all these things are being discarded into the sewage, and due to that the level of water rises. And what happened in the city, almost around in whole city, in whole Patna city, the ground floor submerged in water without any flood, only due to rainwater, as there were no appropriate provision, no appropriate system for drain out the water, the rainwater. So there must be drainage system for water as well as drainage system for sewage as well as rainwater. Okay, drainage system for sewage and rainwater. That is essential. If they are not functioning properly, then it will lead to stagnancy of water. We are using the things in our house, and while we are purchasing the things, then there are some of the things which are being discarded. Some of the things which are being discarded, that is natural. घरों से सब्जी का छिलका फेंकना ही फेंकना है, डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। या जो बचा हुआ भोजन है डिस्चार्ज करेंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे, सीवेज में उसको बहाएंगे। लेकिन कई बार हम लोग जितनी जरूरत है उससे अधिक गार्बेज क्रिएट करते हैं, और स्पेशली ये जो समस्या आ रही है ड्यू टू पॉलीथीन, ड्यू टू पैकेजिंग, ड्यू टू पैकेट्स। तो हम लोग का ये एफर्ट होना चाहिए कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, तो जो एसेंशियल है उतना तो ठीक है, लेकिन एक्सेसिव उसका जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे घरों से हम लोग यदि मार्केट जाते हैं, एक जूट की थैली या प्लास्टिक की थैली ले लें जिसमें 5 केजी 10 केजी सब्जी बड़े मजे में आ जाता है, तो कई छोटी छोटी चीज़ें जब हम भी खरीदते हैं तो क्या होता है कि हर एक चीज़ के साथ एक पॉलीथीन आता है, और घर में जैसे वो सामान आ गया उस पॉलीथीन को डिस्कार्ड करते हैं। 50 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन, आधा केजी टमाटर, आधा केजी मटर, और हर एक में एक एक पॉलीथीन। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ला सकते हैं, और जो गार्बेज का प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हम लोग को चाहिए कि अपने घरों से भी हम लोग ऐसा एफर्ट करें, नहीं, आवर एफर्ट मस्ट बी टू मिनिमाइज द वेस्ट, है ना। देयर मस्ट बी आवर एफर्ट, we must try to minimize the amount of garbage by using jute bags। जूट का बैग हम लोग लेके जाएंगे, तो जो भी ऐसी चीजें जिसको घर में ला के हम लोग धोते हैं, तो वैसी चीजों के लिए जूट का बैग ले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे वो क्या करेंगे, मिनिमम, कम से कम डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये सारी चीजें एसेंशियल है। साथ ही साथ ये जो भी सुविधाएं हैं हेल्दी रहने के लिए, तो पर्सनली हम लोग अपनी साफ सफाई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन। जो प्रॉपर सैनिटेशन है उसके मेंटेनेंस के लिए इसके साथ साथ और भी चीजों की जरूरत होती है। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग आम तौर पे नहीं करते हैं, तो उस समय जरूरत हो जाती है कि ऐसा लॉ बनाया जाए, ऐसे
कानून बनाया जाए कि जिसके दबाव में आकर के हम उस काम को करें। अब सिंपली जैसे अभी गाड़ियों का चल रहा है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि योर व्हीकल इज इन गुड कंडीशन, जो आपकी गाड़ी है उसके हेल्थ अच्छे हैं, तो हम अपनी गाड़ी का हेल्थ अच्छा रखें, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये क्या होगा कि जब गाड़ी का हेल्थ अच्छा नहीं है, दैट मीन्स दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मोर हार्मफुल गैसेस, गाड़ियों से अधिक धुआं निकलेगी और अधिक धुआं निकलेगा तो ये स्प्रेड होगा और हम सभी के लिए ये क्या है, पॉल्यूशन का काम करेगा, हम सभी के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका। तो इसलिए कई बार जरूरत है इन्फोर्समेंट, जबरदस्ती लागू किया जाए, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी पॉल्यूशन लॉज, जो नियम है, जो कानून है, उसको जबरदस्ती लागू किया गया है ना, जिससे कि पॉल्यूशन मिनिमाइज हो। और बहुत से लोगों में सजगता आई है। अब जैसे सिगरेट पीना, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, तो इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। कहाँ? कॉमन प्लेसेस पे, जो पब्लिक प्लेसेस है, बस है, वहाँ इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। और यदि आप कहीं बस में जा रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो ऑटो में, और कोई बीड़ी और सिगरेट पीता हो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए कि ये पब्लिक प्लेस पे नहीं करने की चीज है। आपको बीड़ी पीना है, आप घर में बीड़ी पीजिए, या फिर आप बस से उतर के बीड़ी पीजिए। और आप यदि कहेंगे तो दूसरे लोग भी सपोर्ट करेंगे और उस व्यक्ति को अपनी बीड़ी बुझाना पड़ेगा। तो एक आगे आने की जरूरत है। कई बार हम लोग सामने नहीं आते, होता है क्या, चलो कौन करता है, लेकिन जरूरत है हमें जो अच्छी बातें हैं, जो सही बातें हैं, उसके लिए मारपीट नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन उस बातों को अप्रोप्रिएटली प्लेस करना है कि जो गलत है वो गलत है। तो कई बार जो नियम कानून है उसको लागू करने होंगे। उसके बाद जो भी डिजीजेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटी जो भी डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट मेजर्स होने चाहिए फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फैसिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी प्रिवेंशन। बीमारी होनी नहीं, हम लोग ऐसा बिहेव करें, ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन कुछ करें जिससे कि बीमारी हो ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो एप्रोप्रिएट फैसिलिटी हो। अब जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है पूरे कंट्री में, हम लोग को दिया गया, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को भी दिया जा रहा है। और आपके विद्यालय आने पे ये एसेंशियल है कि सभी के सभी आप लोगों को वैक्सीनेटेड होना है। यदि आप वैक्सीनेटेड नहीं है, विद्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है कि वैक्सीनेट कर दिया गया तो हम बीमार नहीं होंगे। तो इसका क्या करना है? गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रहे हैं, और हमें भी अवेयर रहने की जरूरत है, हमें सपोर्ट करना है, हमें आगे आना है इस तरह के कामों में। उसके बाद यदि हम लोगों को जो भी मेजर्स हैं, जो भी बातें हैं, इसकी जानकारी रहेगी कि कौन बीमारी कैसे हो रही है, कौन सी बीमारी कैसे स्प्रेड करती है, तो हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। दैट मीन्स जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की। यदि पर्सन अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो आमतौर पे जो बीमारियां हैं जिसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, दैट विल बी डिस्कार्डेड। एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, ऐसे बीमारी तो होना है, डेथ होनी है, लेकिन फिर भी चांसेस क्या होता है? कम होता है, मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हेल्थ केयर क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है। तो क्या है? जरूरत है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन। और
अभी ये जो चैप्टर आपको इंक्लूड किया गया है इसका यही पर्पस है, क्या? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन। और जब बच्चों में अवेयरनेस आ जाएगी तो जाहिर सी बात है ही विल रिमेन फिट नॉट फॉर प्रेजेंट टाइम रेदर फॉर फ्यूचर एंड ही और सी कैन गाइड देयर कमिंग जनरेशंस टू। इसीलिए ये बहुत जरूरी है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन। यदि ये मिल जाता है तो क्या हो गया, दिस इज द रूट कॉज, हम लोग अवेयर हो जाएंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। यदि हम प्रिकॉशन लेते हैं, सारी बातें सही है, उसके बाद भी जब हम बीमार पड़ेंगे तो क्या होना है, ट्रीटमेंट चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, नहीं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी हेल्थ केयर सेंटर्स एट एप्रोप्रिएट प्लेस, नजदीक में हो जहाँ की आसानी से जा सके। अब इमेजिन कीजिए रात में कोई बीमार पड़ता है, सडनली कुछ प्रॉब्लम होती है और उसे 50 किलोमीटर हॉस्पिटल जाना पड़े, तो जाहिर सी बात है 50 किलोमीटर जाते जाते हो सकता है पेशेंट कोलैप्स कर जाए। तो एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे अवेलेबिलिटी हो, डॉक्टर्स की हेल्थ केयर सेंटर हो, तो हेल्थ केयर सेंटर्स पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हैं। और अभी भी इसकी जरूरत है, अपने कंट्री में जो हेल्थ केयर सेंटर्स है उसकी जरूरत अभी भी है, डॉक्टर्स की नीड अभी भी है, ठीक है। प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स। ये है कि जो मदर है जो बच्चों को जन्म दे रही है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दोनों के हेल्थ का केयर, अभी तो मेडिकल साइंस बहुत अधिक प्रोग्रेस कर गया है, लेकिन आज से 50 साल पहले की बात करें, 50 इयर्स बैक बात करें हम लोग, तो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वेयर डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड दैट इज टर्म्ड एज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR, maternal mortality rate. At the same time, there was death of the infant, of the inborn baby. छोटे बच्चों की भी मौत होती थी और मदर की भी डेथ हो जाती थी। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग के जो दादाजी हैं, परदादाजी हैं, तो उस समय में देखेंगे आमतौर पे लोगों की 2-2 शादियां होती थी, क्योंकि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, बच्चा देते समय डेथ हो जाती थी, फिर दूसरी शादी करनी पड़ती थी। उसके बाद जो बच्चे पैदा होते थे तो 5 साल 7 साल होते होते बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो एक आम धारणा थी लोगों के जेहन में था कि कम से कम 5-6 बच्चे हो कि सर्वाइव करेंगे, एटलीस्ट 2-3 सर्वाइव करेंगे। तो उस समय में जो भी लोग हैं तो उनके पास 5-6 भाई बहन, ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, क्योंकि उस समय का सिचुएशन ऐसा था। आज के समय में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़िया है कि यदि एक बच्चे हैं तो यदि डेथ तो इनएविटेबल है, आना ही आना है, लेकिन आम तौर पे जो पहले जिस तरह से मौत हो जाती थी आज के समय में नहीं हो रहा है ड्यू टू एडवांस्ड मेडिकल साइंस। तो ये था मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये बहुत अधिक है और ये जनसंख्या को कंट्रोल करती थी। एक बात है जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, हालांकि गलत चीज है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो ये बहुत हाई थे। अब क्या हो गया है, ये कम हो गया है, डाउन हो गया है ड्यू टू एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के एडवांस होने के कारण अब इस तरह की बातें नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो हेल्थ की आती है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बैलेंस डाइट।
गुड हेल्थ की बात करते हैं तो जो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है कि हमारे फूड में वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे फूड में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हो जो हमें जरूरी है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। और इन चीजों को खरीदने के लिए, बैलेंस डाइट के लिए जाहिर सी बात है पैसे चाहिए। और पैसा कब होगा? जब हम काम करेंगे, जब हम कमाएंगे, जब हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं तो जो फूड है, जो बेसिक सबसे क्या है, जो सबसे बेसिक है दैट इज बैलेंस डाइट। जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ की बात करें तो बैलेंस डाइट नीडेड है। और बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए? बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए? गुड इकोनॉमिक कंडीशन। इट रिक्वायर्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन। और गुड इकोनॉमिक कंडीशन तब तक नहीं होंगे जबकि हमारे पास जॉब नहीं होगा, जब हमारे पास वर्क नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज नीडेड, दैट मीन्स जॉब फॉर इंडिविजुअल। जॉब, काम, हर एक आदमी में क्या होना चाहिए? काम होनी चाहिए। जॉब फॉर इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति के पास काम होना है, काम की जरूरत है। यदि हर एक के पास काम नहीं है, अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसे करना कि बैलेंस डाइट ले, ये एक मजाक होगा, एक हास्यास्पद बात होगी। इसीलिए दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, टू द एजुकेटेड पर्संस। तो अभी इसमें थोड़ी कमी है और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन काम मिलना है, जब तक काम नहीं करेंगे आमदनी नहीं होगी। अब इमेजिन कीजिए कि एक रिक्शा चालक है, ठेला चालक है जो डेली बेसिस काम कर रहा है, तो कई बार उनको काम भी नहीं मिलता है, सालों भर काम नहीं मिलता। यदि काम मिलता भी है तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए उसकी कमाई, उसकी आमदनी पर डे 300 रुपये है। अब 300 रुपया में उसको कहें कि बैलेंस डाइट लो, तुम सेव खाओ, है ना, डॉक्टर्स का कहना है। और ये बड़ा प्रोवर्ब है, आप लोग सुने होंगे, एन एप्पल्स डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब जो गरीब आदमी है तो मान के चलिए 2 खुद हो गए, 2 उनके माँ बाप हुए, 4 और 5-6 बच्चे भी होंगे, तो 10 आदमी हो गए। और 10 आदमी के लिए एक एक सेब भी खरीदना है, तो छोटा वाला सेब भी खरीदेगा तो 1 केजी चाहिए, 150 रुपये केजी सेब। अब बताइए 150 रुपये केजी का एक सेब मिल रहा है, कहाँ से खिला पाएगा? तो उसके सामने यदि हम कहें कि भैया आप अपने बच्चों को सेब खिलाइए, बैलेंस डाइट दीजिए, तो वो क्या करेगा हमारे प्रति जो उसके मन में होगी बातें, वो है कि चलो ये तो बड़े ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि सभी के पास क्या हो, एक एप्रोप्रिएट उसका इकोनॉमिक कंडीशन हो, एक आमदनी हो जिससे कि उसको वो खरीद सके। एक मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है, सुने होंगे, हो सकता है आप लोग कोई पढ़े भी हो, मौका मिले तो पढ़िए। काफी अच्छी उपन्यास है, मैंने भी पढ़ा था बहुत पहले, एग्जैक्टली याद नहीं क्या था उसमें, लेकिन इतना याद है कि उसमें एक डॉक्टर है और उनका यही कहना है कि जो सबसे बड़ी बीमारी भारत में है वो गरीबी है, वो भूखमरी है। और ये बात मैलांचल बहुत पहले लिखा गया होगा, लेकिन आज भी ये बात सटीक है, आज भी ये बात, ये जो सेंटेंस है आज भी ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं हुआ। एक 1974 की फिल्म है, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, आनंद। कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा, अच्छी फिल्म है और कैंसर पे बनाई गई फिल्म है। और कमोबेश आज भी कैंसर की वही स्थिति है जो 1974 में था।
उस समय डॉक्टर ने टाइम दिया है कि ही विल सर्वाइव फॉर रिमेनिंग 6 मंथ, और आज भी डॉक्टर कह देते हैं 6 महीने तक पेशेंट सर्वाइव कर रहा है। दिस इज द कंडीशन। तो बहुत अधिक जो फील्ड है अभी, बहुत अधिक काम करने बाकी है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से डॉक्टर बनिए, इस फील्ड में काम कीजिए, है ना। तो मैलांचल में यही है कुल मिलाकर के कि जो गरीबी है वो सबसे बड़ी बीमारी है। तो उसी तरह से आनंद फिल्म में एक जगह अमिताभ बच्चन डॉक्टर होते हैं, तो जब गली से गुजरते रहते हैं तो बड़ी गंदी सी बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है। एक बूढ़ी औरत आती है, कहती है डॉक्टर बाबू मिठाई खा लो। तो झेपते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि देख रहे हैं कि सारे लोग गरीब हैं, इतने गरीब लोग हैं, फिर मिठाई खरीद रहे हैं, खिला रहे हैं, तो बड़ी उनको तकलीफ होती है, दर्द होता है, और उनके मन में ये सवाल होता है, ये बातें आ जाती हैं अचानक से, बड़ी दर्दनाक बात है। लेकिन उनके मन में ये आता है कि एक तो मरा नहीं और दूसरा मरने के लिए पैदा हो गया। दिस इज द रियलिटी। ये सच्चाई है कि गरीबी में वो हाल है कि जो लोग जी रहे हैं वो भी जी कहाँ रहे हैं। यदि आज भी किसी के घर में गरीब परिवार में बीमारी हो जाए तो कई बार बिना इलाज के लोग मर जाते हैं, और कहते हैं कि यदि इलाज कराएंगे तो परिवार के सारे लोग मर जाएंगे। दिस इज द कंडीशन। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल के पास वर्क हो, और इसके नहीं होने के कारण समस्या क्या आती है कि हमारे सोसाइटी में जो सोशल हार्मोनी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी की अभाव होती है। ड्यू टू दैट क्या होगा, यदि सभी के पास जॉब होगी तो क्या होगा, सोशल इक्वालिटी होगी, और जब सोशल इक्वालिटी होगी तब हम लोग हैप्पी होंगे, तब हम लोग हेल्दी होंगे। अभी क्या है, सोशल इक्वालिटी नहीं है। समस्या है आज के समय में, जिन लोगों को जॉब है वो भी परेशान है, जिन लोगों को जॉब नहीं है वो भी परेशान है। अब जिन लोगों को जॉब नहीं है, बेकार है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे।